ओके, सो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या बोल रहा है ये कि which of the following statement is true about the Turing machine? M, Q there, symbol there, this function tape alphabet is there, I think, and this is the transition function is initial state, input symbol, and this is the final state. This is the B they haven't mentioned. So this symbol is the finite non-empty set of the tape symbols. This is a correct. Quite. This is a very basic thing of the Turing machine. Sigma is a finite non-empty set of the input symbols, and B belongs to sigma, where B is a blank symbol of the tape. So I think this is also correct. Sigma is the finite non-empty set of the input symbols, and B belongs to sigma, where B belongs to sigma, where B is a blank symbol of the tape. This is the incorrect answer. क्योंकि जो हमारे पास B belongs to sigma है, जरूरी नहीं है कि ये belongs to sigma हो. Blank symbol can be anything. जो sigma है, it contains input symbols, ना कि blank. जो हमारे पास blank symbol है वो नहीं होगा. ठीक है, तो जो हमारा इनपुट सिंबल है वो सिग्मा के अंदर होता है. ब्लैंक सिंबल जरूरी नहीं कि उसके अंदर होगा. सो ओनली वन इज करेक्ट हियर. ओनली वन इज अ correct answer. So only one is a correct answer. These all three are the wrong answer. I think you got the point. Why this is the wrong answer, because the blank symbol may not be the it can't be the part of the input symbol, you can say. Okay, so let's see question number 57. What will be the output of the following C program segment? So following C program segment, okay, what will be the output? So they are telling that character S is equal to 130. Character as x is equal to 130, they are telling. Okay, so 130, then again they are going to print x is equal to percentage d they are using, and x they are using. Okay, so we know that what we know that कि हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास कैरेक्टर जो हम स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे. वी नो दैट वी हैव 2 bytes of the memory. Byte number 1 is there, byte number 2 is there, byte 1 and byte number 2 is there. Okay, so we know that how we can store the data. करेक्टर x को हम स्टोर करेंगे जब x हमारा 130 है. सो 130 को हम कैसे वी आर गोइंग टू स्टोर, सी दैट. सो 130 हमारा हो जाएगा 128 प्लस 2. सो 1 2 4 1 2 4 8 16 32 64 128. आई थिंक दिस जीरो इज एक्स्ट्रा. ओके, so character will take 1 byte, and 1 2 3 4 5 6 7 8. This is a perfect thing, I think, that we can store it. Okay, now so how we are going to store actually this one, how we are going to store this one. Okay, so let's see how we are going to store this one. So we know that this is the binary, so we know that this is the binary number of the this 130. But you know that ki what is the maximum signed number. What is the maximum signed number? Maximum signed number that can be represented with the 8 bit. क्योंकि we know that character is 8 bit, minus 127 128 to 127. This is the maximum number, maximum signed number that can be represented by the 8 bit number. Okay, so 130 can't be represented, so we are going to do that like this. आपने पढ़ा होगा, we are going to make it like 250 minus 130. So what will be the answer for this particular question? 255 minus 130, sorry 256, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इज 256. हमारे पास 256 का हमारे पास जो 256 मतलब एक तरह से 2 पावर 8 हमारा जो होता है 256 एक तरह से एक पैरामीटर है जिसके थ्रू माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा. दैट इज हाउ इट इज अ 126 माइनस में. क्योंकि हम 130 देखो एक्चुअली करते कैसे हैं, समझने की कोशिश करो ये होता है कैसे. ठीक है, so maximum number that we can represent, maximum number that can be represented that we can represent is maximum number that we can represent with the 8 bit is 8 bit के थ्रू हम जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा नंबर जो होता है minus 122 to 127 होता है. Now we are going to store 130. Again we have a like 1 minus 128 minus 126 minus 127 minus 126, फिर 126 है 127 है. Now we are going to store this number 129 then 130. We are going to store this number, so we have to map like this again to 120. This positive 120 have to map with this one, I have to map this one, 130 I have to map this one, minus 136. So answer will be minus 126. How? Because with the 8 bit the mask you can say, or a parameter can be 256, that if I will subtract to 130 minus 256 it will give me what you can say here.
सॉरी 256 माइनस अगर 130 करते हैं हमारे पास, अगर हम 256 माइनस 130 करते हैं, 256 minus 130, that will give me 126 in the minus form, because again we are going to reverse. So answer will be minus 126. I hope you got the pointer. Another thing, another way I can solve it, like I have a number like 8-bit number, signed number, that is a 130, unsigned number 130, 1 2 3 4 5 6 7 8. Again I will take 2's complement it. तो 2's complement क्या होगा, इसका 2's complement होगा, ये हमारा पास हो जाएगा ये जो जीरो ये 1 रहेगा, ये हमारे पास 0 रहेगा, फिर सॉरी दिस आई हैव टू मेक अनचेंज, देन आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट. सो दिस विल बी 0 1, फिर 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा हमारा 0. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 126, 126 आएगा. और इसको अगर माइनस ले लोगे तो क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास नेगेटिव है, इसके थ्रू आंसर हो जाएगा माइनस 126. सो दिस वन इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज द गुड क्वेश्चन. ओके, सो हमेशा याद रखो, अगर हमारे पास नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट चेक करनी है, उसको हम जो अगर 8 बिट का है 2 पावर 8 से, अगर 1 बाई 8 1 बाई 8 का है 2 पावर 8 से, अगर 2 बाइट का है तो हमें 2 पावर आई थिंक 16 से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं. विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरी मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLB? सो वी हैव टू टेल which of the following is the full form of the TLB. तो हमें पता है TLB का यूज हमें पता होता है. ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, ये सारे गलत होता है. और हमें TLB पता होता है कि जो हमारे पास पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, पेजिंग, तो हमारे पास TLB होता है, यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल होता है, फिर हमारे यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क होता है. ओके, मेन मेमोरी होता है बीच में, फिर हार्ड डिस्क होता है, और ये हमारे पास OS होता है. सो ये कॉन्सेप्ट होता है, हमें मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है. ओके, सो TLB इज यूज टू कीप द फ्रीक्वेंट यूज्ड पेज टेबल एंट्रीज. सो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इज द आंसर, फुल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है ये भी. ओके, कंसिडर अ सिस्टम विथ वाइड एड्रेसेबल मेमोरी. ओके, सो मेमोरी इज अ वाइड एड्रेसेबल थिंग, यू कैन से, हैविंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स. तो हमारे पास मेमोरी में नीचे दिए गए पैरामीटर्स है. लॉजिकल एड्रेस साइज, लॉजिकल एड्रेस साइज मतलब प्रोसेस साइज होता है हमेशा, प्रोसेस साइज, दैट इज अ 32 बिट. पेज साइज इज 4 KB. सो पेज साइज इज गिवन दैट 4 किलोबाइट 4 KB. ओके, सो प्रोसेस साइज का 32 बिट यहाँ पे दिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे वर्चुअल एड्रेस दिया हुआ है, मतलब प्रोसेस का साइज 2 पावर 32 बाइट है ये. ठीक है, हमारे पास प्रोसेस साइज या एड्रेस दिया हुआ है तो 2 पावर 32 बाइट हो जाएगा. पेज टेबल एंट्रीज, सो पेज टेबल एंट्री साइज हमारे पास जो है वो है 4 बाइट ईच है. ओके, what will be the size of the page table in the system? We have to tell the what will be the size of the page table in the system. Okay, so what is the page table actually? So what exactly it contains? Page table का जो होता है वो होता है number of pages into entry size. तो यहाँ पे number of pages हमें कैलकुलेट करना है, बट entry size यहाँ पे दिया हुआ है 4 बाइट. ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ पेजेस जो होता है, देखो हमारे पास जो प्रोसेस बनती है, जो प्रोसेस होती है वो होती है पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस प्लस पेज साइज. तो यहाँ पे हमारे पास देखो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोसेस साइज कितना है, प्रोसेस साइज हमारे पास दिया हुआ है 2 पावर 32. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, डिवाइड कर दो किससे, पेज साइज से, सिंपल. तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस जो आएंगे, नंबर ऑफ पेजेस वो कितने आएंगे, 2 पावर 32. अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, प्रोसेस साइज नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज साइज से होता है ऐसा. 2 पावर 32 डिवाइड बाय, यहाँ पे पेज साइज कितना दिया है, 4 KB दिया हुआ है. सो 4 इंटू 2 पावर 10 हो जाएगा, KB को हमने बाइट में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज नथिंग बट 2 पावर 32 डिवाइड बाय 2 पावर 12, दिस इज द 2 पावर 20. सो नंबर ऑफ पेजेस कितने हमारे पास, 2 पावर 20. ओके, ईच पेज साइज इज 4 बाइट. यहाँ पे हमने देखा है, हमें यहाँ पे केवल 2 पावर 20 को पुट करना था, 2 पावर 20 हमने पुट किया प्लस 4 बाइट हमने पुट किया. दिस इज नथिंग बट 4 बाइट को अगर यहाँ लाओगे तो 4 इंटू 2 पावर 20 बाइट, और ये होता है हमारा MB. सो दिस विल बिकम द 4 MB. आंसर इज 4 MB. दीज ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस. ओके, बहुत ही सिंपल पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है. अगर आपने नहीं पढ़ा, वन शॉट का मैंने बताया कैसे पढ़ना है आपको. ओके, दिस इज द 4 MB इज द आंसर. Okay, let's see the question number 60 here. We have the question number 60 also. Okay, so which of the following statement is true about the relative addressing mode? Okay, so हमें बताना है relative addressing mode जो होता है. relative मतलब क्या होता है addressing mode? PC relative addressing mode, प्रोग्राम काउंटर एड्रेसिंग मोड. तो इसमें होता है क्या है हमारे पास,
हमारे पास तो ऑपकोड होगा, फिर ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड कंटेन्स ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट वैल्यू, और हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर का एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का, और इन दोनों को ऐड करके पीसी प्लस ऑफसेट को ऐड करके हम क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो दिस हेल्प्स इन द जंपिंग इंट्रा सेगमेंट ब्रांचिंग। ओके, सो हमें ये ब्रांचिंग में यूज करता है। कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। In this mode, the effective address of the operand is computed by adding the content of the program counter to the address part of the instruction. Clearly यहाँ पे मैंने बताया कि एक ऑपरेंड फील्ड का जो कंटेंट है और नेक्स्ट पीसी का जो वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके ही हमें ऑपरेंड मिलता है। दिस वन इज द करेक्ट। इन दिस मोड द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट, ऑफसेट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं किसी इंस्ट्रक्शन में हूँ, मान लो मेरे पास इंस्ट्रक्शन ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका एड्रेस मान लो 100 है, इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है, इसका 104 है, इसका 105 है, इसका 106 है, इसका 107 है। करंटली मैं अगर 103 को रन कर रहा हूँ तो मेरा पीसी जो होगा 104 होगा। अच्छा, अब मैं वापिस अगर 1 पे यहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, पीसी मैं 100 पे वापिस जाना चाहता हूँ इधर, तो हमें करना पड़ेगा 104 माइनस 4 ताकि मैं 100 पे वापिस जा सकूँ। अगर मुझे 7 पे जाना है तो 104 प्लस 3 करना पड़ेगा। So this one I am taking from the program counter register. This one I am taking from the here, and this one is I am taking from the instruction part. So here it is a positive, here it is a negative. So it can be positive, negative both. I hope you got the point. Question number 60 का आंसर है both. These all three are the incorrect answer. So this one is a question number 60. Okay, let's go to the question number 61, my brother. Which of the following is the number of bits in the binary number equivalent to the decimal number? Decimal number अगर 1000 है तो हमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, अगर आपके पास 1000 है, देखो आप बाइनरी नंबर में 512 रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 पावर 9 से, और 2 पावर 10 से आप कर सकते हो 1024। So do you need to 1024? You don't need, because you only need maximum 2 power 9. So we know that the positions, that the positions, it is a 2 power 0, it is a 2 power 1. So हमारे पास ये 0 हो गया, पावर में 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हाउ मेनी पोजिशंस वी हैव? दीज आर द नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे 1 नहीं पूछा, केवल बिट्स पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So here 10 bits are there. These all are the wrong. I hope you got the point. अगर वो मेरे से पूछता कितने नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे, देन आई हैव टू कैलकुलेट। हाउ आई विल कैलकुलेट? देखो 512 हो गया हमारे पास, यहाँ पे 512 पे 1 कर दिया हमने। नाउ 1000 में से 512 अगर माइनस करोगे तो आई होप यू विल गेट द 488। 488 के पास में नंबर कौन सा है? 512 के बाद 256 आई विल टेक, एंड अगेन 488 में 256 में माइनस करूंगा, 8 में 6 गए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 232 is coming. Again I know that 128 I have to take 128. This will become 12 बढ़ गए 4, this will become 0, this will become 1, 104. Again I need to calculate these things. Okay, these are the different questions. So I hope you got the question number 61, that is the 10 is the answer. Okay, question number 62 में बात करते हैं, which of the following combinational circuit may be implemented using only an XOR gate and AND gate. तो हमें पता है XOR गेट और AND गेट के थ्रू हम हाफ एडर यूज कर सकते हैं। कैसे हाफ एडर? क्योंकि हमारे पास जो हाफ एडर होता है उसका जो हमारे पास सम आता है वो होता है AB XOR BA, और हमारे पास जो कैरी आता है आई थिंक वो आता है AB। सो वी कैन कैलकुलेट, वी कैन सॉल्व दिस हाफ एडर बाय दिस। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर। तो हाफ एडर, फुल एडर ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 62 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। हाउ मेनी जीरोज एंड वन शुड बी देयर इन द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 992। आ गया क्वेश्चन आपका। ओके, कि कितने नंबर ऑफ वंस एंड जीरो होंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करना, सबसे सिंपल तरीका, 992 के सबसे पास नंबर कौन सा है? 92 के पास, दैट इज अ 2 पावर 9, दैट इज अ 512। तो 992 में से मैं 512 क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो कितना आएगा बताओ? 7 आएगा, फिर कितना आएगा? यहाँ से 8 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमारे पास 512 वाली पोजीशन यहाँ पे क्या होगी? फिक्स हो गई। ये दिस इज अ 2 पावर 9 वाली पोजीशन। ओके, नाउ अब हमारे पास 2 पावर 9 के बाद 2 पावर 8 कितना होता है? 256। 256 माइनस कर दो इसमें से, तो 7 में 6 गए, 1, ये हो गया 3, 231। तो हमने 2 पावर 8 को भी हम क्या कर लिया? ले लिया। जिसको हम ले रहे हैं वहां पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। नाउ 231 में से हमें क्या माइनस करना है? देखो 2 पावर 8 ले लिया, 2 पावर 7 भी कर सकते हैं क्या? 128 किया सकता है, कर दिया हमने। 11 बढ़ गया, 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। समझे बात को?
सो हमारे पास 2 पावर 7 भी हो गया, दैट इज अ 1. नाउ 2 पावर 6 हम ले सकते हैं क्या? 2 पावर 6 इज व्हाट? 64. यस, वी कैन टेक द 64. अगेन आई विल माइनस 64. 64 माइनस किया तो 13 4 कितना हो गया? 9 हो गया. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा. सिंपल. 6 9 4 13 10 39. तो 2 पावर हमने क्या ले लिया? 2 पावर 6 भी ले लिया. नाउ कैन वी टेक 2 पावर 5? यस, वी कैन टेक 2 पावर 5, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा. यहाँ पे कितना बचेगा? 7 बचेगा. 2 पावर हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया. नाउ कैन वी टेक 2 पावर 4? वी कांट टेक 2 पावर 4, क्योंकि 2 पावर 4 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, हमें 7 चाहिए. 2 पावर 3 नहीं ले सकते. 2 पावर 3 यहाँ भी. नाउ 2 पावर 2 यहाँ से तो हमें पता है कि 2 पावर 2 2 पावर 1 2 पावर 0 से यहाँ पे हमारा 7 ही बनता है. सो दिस वन इज द आवर, दिस इज वन व्हाट, this one is what binary number equivalent to the decimal number 992. Okay, now what we have to answer this. Okay, so you can answer this कि क्या आंसर होगा इसका. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं? नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरो से नंबर ऑफ वंस पूछा है, तो यहाँ पे जीरो हमारे पास कितने हैं? 2 हैं. और 1 कितने हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 आ रहा है, 2 आ रहा है. सो what is wrong with this? Let me verify my answer. Okay, I need to verify once and you can also verify what is the answer. मैं अगर पूरा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है उसको अगर मैं प्लस करता हूँ, जैसे मेरे पास 512 है प्लस 256 है प्लस 128 है प्लस 64 है, फिर हमारे पास 64 के बाद फिर हमारे पास क्या है? 32 है. ओके ओके, आई थिंक आफ्टर 32 आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. I think we have done something wrong. We have done something wrong. Can you check once? 512 plus 256 plus 128 plus 64 plus 32. I think 32 के बाद 992 आ रहा है. 992 आ रहा है. So we have done some calculation mistake. Can we verify? 9 में 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4. Okay okay, we have taken 993 999 actually. I have taken 999 boys. ओके, 992 हमें बता रहा था. ओके, सो 992 का भी आप सेम कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं. तो 999 का मैंने लिया था, इसलिए मेरा आंसर ये आया. आप 992 का ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 63. आपको समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को. बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन. हमारे पास बताना है कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है. द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन लोड ए इज इक्विवेलेंट. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन लोड ए बताना है इज इक्विवेलेंट टू मेमोरी एड्रेस 1 टू एक्यूमुलेटर विच ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए टू मेमोरी एड्रेस ए. आई थिंक दिस इज अ इनकरेक्ट आंसर. लोड ए का मतलब क्या होता है? हमें ए से लोड करना है. लोड ए का मतलब ये होता है कि हमें ए से समथिंग लोड करना है. एड्रेस ए से हमें कुछ लोड करना है मेमोरी से. नॉट वी हैव टू राइट. हियर वी आर राइटिंग, नॉट लोडिंग. दिस वन इज अ रॉन्ग. The stack organized computer uses two address instruction. गलत. Stack organized computer uses zero address instruction. Zero. This one is correct. One address instruction uses index register for all data manipulation. गलत. One address में जरूरी नहीं है कि रजिस्टर हमारे पास index register ही हो. Okay. The one address instruction add A is equivalent to accumulator A में accumulator A plus memory addresses where memory address A denotes the operand at the memory address A. It is a correct answer. क्योंकि accumulator हमारा डिफॉल्ट क्या होता है? हमारे पास डेटा स्टोर करके रखता है. तो हमने एड ए बोला, मतलब एक्यूमुलेटर हमारे पास एक्सप्लिसिट ही हमारे पास इम्प्लिसिट जो होगा वो आ जाएगा और मेमोरी एड्रेस ए के कंटेंट को हम ऐड कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो दीज ऑल आर इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 65 गाइस. Which of the following need connection oriented service? So connection oriented service मतलब कनेक्शन बनाना पड़ेगा हमें पहले. सो फाइल ट्रांसफर के लिए हम FTP यूज करते हैं, पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है. इट इज अ करेक्ट. रिमोट लॉगिन के लिए भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बिना कनेक्शन के रिमोट नहीं ले सकते. पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के लिए भी कनेक्शन बनाना पड़ता है. ये तो सर्किट स्विचिंग की हो गया. ये हो गया हमारा सर्किट स्विचिंग, जो कि हम CM में पढ़ते हैं. सो ऑल 3 नीड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स. सो ऑल 3 इज द दिस वन आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन CN का. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया. ये क्वेश्चन नंबर 66 में आता है. Which statement is correct about the quicksort algorithm? Okay, we have to tell the which one is the correct for the quicksort algorithm. The partition operation places the pivot at its proper position. The partition operation places the pivot at its proper position. It is a correct. It is a correct answer. The partition operation places the pivot at its proper position. Correct.
इट्स वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गारंटीड टू बी ऑर्डर ऑफ n log n. This is a wrong. ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है. it inherently operates as a stable sorting algorithm. गलत. ये इनस्टेबल है, अनस्टेबल. It heavily requires order of on auxiliary space array for the execution. गलत. इसका जो वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ log n होता है. ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 66 तक हमने सॉल्व किया है. अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास I guess 21 question left है that we are going to 21 नहीं 19 question left. Then we are going to solve these questions on next 2 videos or 1 videos. Thanks for watching. Don't forget to enroll in the test series and all the best for all the things. अगर कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया कमेंट करो. All the best.